پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، جو ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے، اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا، اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوتے تھے، اور جس چیز پر بھی قابو پالے اسے باقاعدہ تباہ و برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے اعداد کو معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی صحیح بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ ہم نے کس طرح باس کو باس پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ و برتر ہیں۔ خبردار اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا کہ اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا،
और इनके हक में दुआ करते रहना कि परवरदिगार उन दोनों पर इसी तरह रहमत नाजिल फरमा जिस तरह के उन्होंने बचपने में मुझे पाला है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिलों के हालात से खूब बाखबर है, और अगर तुम सालेह और नेक किरदार हो तो वो तौबा करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला भी है। और देखो, कराबतदारों को और मिस्कीन को और मुसाफिर गुर्बत ज़दा को उसका हक दे दो, और खबरदार इसराफ से काम ना लेना। इसराफ करने वाले शयातीन के भाई बंद हैं, और शैतान तो अपने परवरदिगार का बहुत बड़ा इनकार करने वाला है। अगर तुमको अपने रब की रहमत के इंतजार में जिसके तुम उम्मीदवार हो इन अफराद से किनारा कश भी होना पड़े तो इनसे नर्म अंदाज से गुफ्तगू करना, और खबरदार ना अपने हाथों को गर्दनों से बंधा हुआ करार दो और ना बिल्कुल फैला दो कि आखिर में काबिल मलामत और खाली हाथ बैठे रह जाओ। तुम्हारा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी या तंग बना देता है। वो अपने बंदों के हालात का खूब जानने वाला और देखने वाला है। और खबरदार अपनी औलाद को फाके के खौफ से कत्ल ना करना कि हम इन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। बेशक इनका कत्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। और देखो, जिना के करीब भी ना जाना कि ये बदकारी है और बहुत बुरा रास्ता है। और किसी नफ्स को जिसको खुदा ने मोहतरम बनाया है बगैर हक के कत्ल भी ना करना कि जो मजलूम कत्ल होता है हम इसके वली को बदले का इख्तियार दे देते हैं, लेकिन इसे भी चाहिए कि कत्ल में हद से आगे ना बढ़ जाए कि इसकी बहरहाल मदद की जाएगी। और यतीम के माल के करीब भी ना जाना मगर इस तरह जो बेहतरीन तरीका है, यहां तक कि वो तवाना हो जाए। और अपने अहदों को पूरा करना कि अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। और जब नापो तो पूरा नापो, और जब तोलो तो सही तराजू से तोलो कि यही बेहतरी और बेहतरीन अंजाम का जरिया है। और जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है इसके पीछे मत जाना कि रोज कयामत समात, बसारत और कुव्वत कल्ब सब के बारे में सवाल किया जाएगा। और रूए जमीन पर अकड़ कर ना चलना कि ना तुम जमीन को शक कर सकते हो और ना सर उठाकर पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। ये सब बातें वो हैं जिनकी बुराई तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सख्त नापसंद है। ये वो हिकमत है जिसकी वही तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ की है। और खबरदार खुदा के साथ किसी और को खुदा ना करार देना कि जहन्नुम में मलामत और जिल्लत के साथ डाल दिए जाओ। क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम लोगों के लिए लड़कों को पसंद किया है और अपने लिए मलाइका में से लड़कियां बनाई है? ये तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। और हमने इस कुरान में सब कुछ तरह तरह से बयान कर दिया है कि ये लोग इबरत हासिल करें, लेकिन इनकी नफरत ही में इजाफा हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इनके कहने के मुताबिक अगर खुदा के साथ कुछ और खुदा भी होते तो अब तक साहिब अर्श तक पहुंचने की कोई राह निकाल लेते। वो पाक और बेनियाज है और इनकी बातों से बहुत ज्यादा बुलंद बाला है। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं, और कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी तस्बीह ना करती हो। ये और बात है कि तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। परवरदिगार बहुत बर्दाश्त करने वाला और दरगुजर करने वाला है। और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दरमियान हिजाब कायम कर देते हैं और इनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं कि कुछ समझ ना सकें, और इनके कानों को बहरा बना देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार का तन्हा जिक्र करते हो तो ये उल्टे पांव मुतनफिर होकर भाग जाते हैं। हम खूब जानते हैं कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, और जब ये बाहम राजदारी की बातें करते हैं तो हम इसे भी जानते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि तुम लोग एक जादूज़दा इंसान की पैरवी कर रहे हो। जरा देखो कि इन्होंने तुम्हारे लिए कैसी मिसालें बयान की हैं और इस तरह ऐसे गुमराह हुए हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये कहते हैं कि जब हम हड्डी और खाक हो जाएंगे तो क्या दोबारा नई मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम पत्थर या लोहा बन जाओ, या तुम्हारे ख्याल में जो इससे बड़ी मखलूक हो सकती है वो बन जाओ। बस अनकरीब ये लोग कहेंगे कि हमें कौन दोबारा वापस ला सकता है, तो कह दीजिए कि जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है। फिर ये लोग इस्तेज़ा में सर हिलाएंगे और कहेंगे कि यह सब कब होगा, तो कह दीजिए कि शायद करीब ही हो जाए।
जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा और तुम सब उसकी तारीफ करते हुए लब्बैक कहोगे और ख्याल करोगे कि बहुत थोड़ी देर दुनिया में रहे हो। और मेरे बंदों से कह दीजिए कि सिर्फ अच्छी बातें किया करें, वरना शैतान यकीनन इनके दरमियान फसाद पैदा करना चाहेगा कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे हालात से बेहतर वाकिफ है। वो चाहेगा तो तुम पर रहम करेगा और चाहेगा तो अजाब करेगा। और पैगंबर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार जमीन और आसमान की हर शय से बाखबर है। और हमने बास अंबिया को बास पर फजीलत दी है और दाऊद को ज़बूर अता की है। और इन लोगों से कह दीजिए कि खुदा के अलावा जिनका भी ख्याल है सबको बुला ले। कोई ना इनकी तकलीफ को दूर करने का इख्तियार रखता है और ना इनके हालात के बदलने का। ये जिनको खुदा समझकर पुकारते हैं वो खुद ही अपने परवरदिगार के लिए वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन ज्यादा कुर्बत रखने वाला है, और सब उसी की रहमत के उम्मीदवार और उसी के अजाब से खौफजदा हैं। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार का अजाब डरने के लायक है। और कोई नाफरमान आबादी ऐसी नहीं है जिसे हम कयामत से पहले बर्बाद ना कर दें या इस पर शदीद अजाब ना नाजिल कर दें कि यह बात किताब में लिख दी गई है। और हमारे लिए मुंह मांगी निशानियां भेजने से सिर्फ यह बात माने है कि पहले वालों ने तकजीब की है और हलाक हो गए हैं। और हमने कौम समूद को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ऊंटनी दे दी जो हमारी कुदरत को रोशन करने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने उस पर जुल्म किया। और हम तो निशानियों को सिर्फ डराने के लिए भेजते हैं। और जब हमने कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार तमाम लोगों के हालात से बाखबर है, और जो ख्वाब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया है वो सिर्फ लोगों की आजमाइश का जरिया है, जिस तरह के कुरान में काबिल लानत शजरा भी ऐसा ही है। और हम लोगों को डराते रहते हैं, लेकिन इनकी सरकशी बढ़ती ही जा रही है। और जब हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा कर लिया सिवाय इब्लीस के। उसने कहा कि क्या मैं इसे सजदा कर लूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? क्या तूने देखा है कि यह क्या शय है जिसे मेरे ऊपर फजीलत दे दी है? अब अगर तूने मुझे कयामत तक की मोहलत दे दी तो मैं इनकी ज़ुर्रियत में चंद अफराद के अलावा सबका गला घोटता रहूंगा। जवाब मिला, जा, अब जो भी तेरा इत्तबा करेगा तुम सब की जजा मुकम्मल तौर पर जहन्नुम है। जा, जिस पर भी बस चले अपनी आवाज से गुमराह कर और अपने सवार और प्यादों से हमला कर दे, और इनके अम्वाल और औलाद में शरीक हो जा, और इनसे खूब वादे कर कि शैतान सिवाय धोखा देने के और कोई सच्चा वादा नहीं कर सकता है। बेशक मेरे असली बंदों पर तेरा कोई बस नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार इनकी निगहबानी के लिए काफी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार ही वो है जो तुम लोगों के लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल व करम को तलाश कर सको कि वो तुम्हारे हाल पर बड़ा मेहरबान है। और जब दरिया में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो खुदा के अलावा सब गायब हो गए जिन्हें तुम पुकार रहे थे, और फिर जब खुदा ने तुम्हें बचाकर खुशकी तक पहुंचा दिया तो तुम फिर किनारा कश हो गए। और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। क्या तुम इस बात से महफूज हो गए हो कि वो तुम्हें खुशकी ही में धंसा दे या तुम पर पत्थरों की बौछार कर दे और उसके बाद फिर कोई कारसाज ना मिले? या इस बात से महफूज हो गए हो कि वो दोबारा तुम्हें समंदर में ले जाए और फिर तेज आंधियों को भेजकर तुम्हारे कुफ्र की बिना पर तुम्हें गर्क कर दे, और उसके बाद कोई ऐसा ना पाओ जो हमारे हुक्म का पीछा कर सके? और हमने बनी आदम को करामत अता की है और इन्हें खुशकी और दरियाओं में सवारियों पर उठाया है, और इन्हें पाकीज़ा रिज़्क अता किया है, और अपनी मखलूकात में से बहुत सो पर फजीलत दी है। कयामत का दिन वो होगा जब हम हर ग्रोह इंसानी को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे, और उसके बाद जिनका नामा आमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो अपने सहीफे को पढ़ेंगे, और इन पर रेशा बराबर जुल्म नहीं होगा। जो इसी दुनिया में अंधा है वो कयामत में भी अंधा और भटका हुआ रहेगा। और ये जालिम इस बात के कोशा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी वहीं से हटाकर
दूसरी बातों के इफ्तरा पर आमादा कर दें और इस तरह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त बना लें। और अगर हमारी तौफीक खास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम ना रखा होता तो आप बशरी तौर पर कुछ न कुछ इनकी तरफ माइल जरूर हो जाते और फिर हम जिंदगानी दुनिया और मौत दोनों मरहलों पर दोहरा मजा चखाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ कोई मददगार और कुमक करने वाला भी ना पाते। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन मक्का से दिल बर्दाश्ता कर रहे थे कि वहां से निकाल दें, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये भी थोड़े दिनों से ज्यादा ना ठहर सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे जाने वाले रसूलों में हमारा तरीक़ेकार रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरीक़ेकार में कोई तगय्युर ना पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल आफ़ताब से रात की तारीकी तक नमाज कायम करें और नमाज सुबह भी कि नमाज सुबह के लिए गवाही का इंतजाम किया गया है और रात के एक हिस्से में कुरान के साथ बेदार रहें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाफा खैर है। अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। और ये कहिए कि परवरदिगार मुझे अच्छी तरह से आबादी में दाखिल कर और बेहतरीन अंदाज से बाहर निकाल और मेरे लिए एक ताकत करार दे दे जो मेरी मददगार साबित हो। और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल फना हो गया कि बातिल बहरहाल फना होने वाला है। और हम कुरान में वो सब कुछ नाजिल कर रहे हैं जो साहिबान ईमान के लिए शिफा और रहमत है और जालिमीन के लिए खसारे में इजाफे के अलावा कुछ ना होगा। और हम जब इंसान पर कोई नेमत नाजिल करते हैं तो वो पहलू बचाकर किनारा कश हो जाता है और जब तकलीफ होती है तो मायूस हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हर एक अपने तरीके पर अमल करता है तो तुम्हारा परवरदिगार भी खूब जानता है कि कौन सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और पैगंबर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो कह दीजिए कि ये मेरे परवरदिगार का एक अम्र है और तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए दिया गया है इसे उठा लें और इसके बाद हमारे मुकाबले में कोई साजगार और जिम्मेदार ना मिले मगर यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की मेहरबानी हो जाए कि उसका फजल आप पर बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन्नात सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरान का मिस्र ले आए तो भी नहीं ला सकते, चाहे सब एक दूसरे के मददगार और पुष्टपना ही क्यों ना हो जाएं। और हमने इस कुरान में सारी मिसालें उलट पुलट कर बयान कर दी हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी अक्सर लोगों ने कुफ्र के अलावा हर बात से इनकार कर दिया है। और इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तुम पर ईमान ना लाएंगे जब तक हमारे लिए जमीन से चश्मा ना जारी कर दो, या तुम्हारे पास खजूर और अंगूर के बाग हों जिनके दरमियान तुम नहरें जारी कर दो, या हमारे ऊपर अपने ख्याल के मुताबिक आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, या अल्लाह और मलाइका को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, या तुम्हारे पास सोने का कोई मकान हो, या तुम आसमान की बुलंदी पर चढ़ जाओ और इस बुलंदी पर भी हम ईमान न लाएंगे जब तक कोई ऐसी किताब नाजिल ना कर दो जिसे हम पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारा परवरदिगार बड़ा बेनियाज है और मैं सिर्फ एक बशर हूं जिसे रसूल बनाकर भेजा गया है। और हिदायत के आ जाने के बाद लोगों के लिए ईमान लाने से कोई शय माने नहीं हुई मगर यह कि कहने लगे कि क्या खुदा ने किसी बशर को रसूल बनाकर भेज दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर जमीन में मलाइका इत्मीनान से टहलते होते तो हम आसमान से मलक ही को रसूल बनाकर भेजते। कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए खुदा काफी है कि वही अपने बंदों के हालात से बाखबर है और इनकी कैफियत का देखने वाला है। और जिसको खुदा हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसको गुमराही में छोड़ दे उसके लिए उसके अलावा कोई मददगार ना पाओगे। और हम इन्हें रोज कयामत मुंह के बल गूंगे, अंधे, बहरे महशूर करेंगे और इनका ठिकाना
जहन्नम होगा कि जिसकी आग बुझने भी लगेगी तो हम शोलों को मजीद भड़का देंगे। ये इस बात की सजा है कि इन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया है और यह कहा है कि जब हम हड्डियां और मिट्टी का ढेर बन जाएंगे तो क्या दोबारा असर नौ फिर पैदा किए जाएंगे? क्या इन लोगों ने यह नहीं देखा है कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है वो इसका जैसा दूसरा भी पैदा करने पर कादिर है और उसने इनके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, मगर जालिमों ने कुफ्र के अलावा हर चीज से इनकार कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे परवरदिगार के खजानों के मालिक होते तो खर्च हो जाने के खौफ से सब रोक लेते और इंसान तो तंग दिल ही वाक़े हुआ है। और हमने मूसा को 9 खुली हुई निशानियां दी थी। तो बनी इसराइल से पूछो कि जब मूसा इनके पास आए तो फिरऔन ने इनसे कह दिया कि मैं तो तुमको सहरज़दा ख्याल कर रहा हूं। मूसा ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि सब मौज़ात आसमान और जमीन के मालिक ने बसीरत का सामान बनाकर नाजिल किए हैं, और ए फिरौन मैं ख्याल कर रहा हूं कि तेरी शामत आ गई है। फिरऔन ने चाहा कि इन लोगों को इस सरजमीन से निकाल बाहर कर दे, लेकिन हमने इसको इसके साथियों समेत दरिया में गर्क कर दिया और इसके बाद बनी इसराइल से कह दिया कि अब जमीन में आबाद हो जाओ, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया है और ये हक ही के साथ नाजिल हुआ है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को मुतफर्रिक बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम थोड़ा थोड़ा लोगों के सामने पढ़ो, और हमने खुद इसे तदरीजन नाजिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए तुम ईमान लाओ या ना लाओ, जिनको इसके पहले इल्म दे दिया गया है इन पर तिलावत होती है तो मुंह के फल सजदा में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाको पाकीज़ा है और उसका वादा यकीनन पूरा होने वाला है, और वो मुंह के फल गिर पड़ते हैं, रोते हैं, और वो कुरान इनके खुशू में इजाफा कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस तरह भी पुकारोगे उसके तमाम नाम बेहतरीन हैं, और अपनी नमाजों को न चिल्लाकर पढ़ो और न बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि दोनों का दरमियानी रास्ता निकालो, और कहो कि सारी हम उस अल्लाह के लिए है जिसने न किसी को फर्जंद बनाया है और न कोई इसके मुल्क में शरीक है और न कोई उसकी कमजोरी की बिना पर उसका सरपरस्त है, और फिर बाकायदा उसकी बुजुर्गी का ऐलान करते रहो। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी हम्द उस खुदा के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है और इसमें किसी तरह की कजी नहीं रखी है, इसे बिल्कुल ठीक रखा है ताकि उसकी तरफ से आने वाले सख्त अजाब से डराए, और जो मोमिनीन नेक अमाल करते हैं इन्हें बशारत दे दें कि इनके लिए बेहतरीन अज्र है, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और फिर इन लोगों को अजाब इलाही से डराइए जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना फर्जंद बनाया है। इस सिलसिले में ना इन्हें कोई इल्म है ना इनके बाप दादा को। ये बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकल रही है कि ये झूठ के अलावा कोई बात ही नहीं करते। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत अफसोस से इनके पीछे अपनी जान खतरे में डाल देंगे अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए? बेशक हमने रूए जमीन की हर चीज को जमीन की जीनत करार दे दिया है ताकि इन लोगों का इम्तिहान ले कि इनमें अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। और हम आखिरकार रूए जमीन की हर चीज को चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम्हारा ख्याल यह है कि काफ और रकीम वाले हमारी निशानियों में से कोई ताज्जुब खेज निशानी थे? जबकि कुछ जवानों ने गार में पनाह ली और ये दुआ की कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे काम में कामयाबी का सामान फराहम कर दे। तो हमने गार में इनके कानों पर चंद बरसों के लिए पर्दे डाल दिए, फिर हमने इन्हें दोबारा उठाया ताकि ये देखें कि दोनों ग्रोह में अपने ठहरने की मुद्दत किसे ज्यादा मालूम है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वाकयात बिल्कुल सच्चे सच्चे बता रहे हैं। ये चंद जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था और इनके दिलों को मुतमईन कर दिया था उस वक्त जब ये सब ये कहकर उठे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके अलावा किसी खुदा को ना पुकारेंगे कि इस तरह हम बेअकली की बात के कायल हो जाएंगे। ये हमारी कौम है
जिसने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा इख्तियार कर लिए हैं। आखिर ये लोग इन खुदाओं के लिए कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? फिर उससे ज्यादा जालिम कौन है जो परवरदिगार पर इफ्तरा करे और उसके खिलाफ इल्जाम लगाए? और जब तुमने इनसे और खुदा के अलावा इनके तमाम माबूदों से अलहदगी इख्तियार कर ली है, तो अब गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दामन फैला देगा और अपने हुक्म से आसानियों का सामान फराहम कर देगा। और तुम देखोगे कि आफताब जब तुलू करता है तो इनके गार से दाहिनी तरफ कतरा कर निकल जाता है, और जब डूबता है तो बाएं तरफ झुक कर निकल जाता है, और वो वसी मकाम पर आराम कर रहे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसको खुदा हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसको वो गुमराही में छोड़ दे उसके लिए कोई रहनुमा और सरपरस्त ना पाओगे। और तुम्हारा ख्याल है कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो आलम ख्वाब में हैं, और हम इन्हें दाहिने बाएं करवट भी बदलवा रहे हैं, और इनका कुत्ता डेवड़ी पर दोनों हाथ फैलाए डटा हुआ है। अगर तुम इनकी कैफियत पर मुत्तला हो जाते तो उल्टे पांव भाग निकलते और तुम्हारे दिल में दहशत समा जाती। और इसी तरह हमने इन्हें दोबारा जिंदा किया ताकि आपस में एक दूसरे से सवाल करें। तो एक ने कहा कि तुमने कितनी मुद्दत तवक्कुफ किया है? तो सब ने कहा कि एक दिन या इसका एक हिस्सा। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा परवरदिगार इस मुद्दत से बेहतर बाखबर है। अब तुम अपने सिक्के देकर किसी को शहर की तरफ भेजो, वो देखे कि कौन सा खाना बेहतर है, और फिर तुम्हारे लिए रिस्क का सामान फराहम करे, और वो आहिस्ता जाए और किसी को तुम्हारे बारे में खबर ना होने पाए। ये अगर तुम्हारे बारे में बाखबर हो गए तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें भी अपने मजहब की तरफ पलटा लेंगे, और इस तरह तुम कभी निजात ना पा सकोगे। और इस तरह हमने कौम को इनके हालात पर मुत्तला कर दिया ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में किसी तरह का शुबा नहीं है। जब ये लोग आपस में इनके बारे में झगड़ा कर रहे थे और ये तय कर रहे थे कि इनके गार पर एक इमारत बना दी जाए, खुदा इनके बारे में बेहतर जानता है। और जो लोग दूसरों की राय पर गालिब आए उन्होंने कहा कि हम इन पर मस्जिद बनाएंगे। अनकरीब ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था, और बास कहेंगे कि 5 थे और छठा इनका कुत्ता था, और ये सब सिर्फ गैबी अंदाजे होंगे। और बास तो ये भी कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि खुदा इनकी तादाद को बेहतर जानता है और चंद अफराद के अलावा कोई नहीं जानता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जाहिरी गुफ्तगू के अलावा वाकईन कोई बहस ना करें और इनके बारे में किसी से दरियाफ्त भी ना करें, और किसी शय के लिए ये ना कहें कि मैं ये काम कल करने वाला हूं, मगर जब तक खुदा ना चाहे। और भूल जाएं तो खुदा को याद करें और ये कहें कि अनकरीब मेरा खुदा मुझे वाकईत से करीब तर अम्र की हिदायत कर देगा। और ये लोग अपने गार में 300 बरस रहे और इस पर 9 दिन का इजाफा भी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह इनकी मुद्दत क़याम से ज्यादा बाखबर है। उसी के लिए आसमान और जमीन का सारा गैब है, और उसकी समात और बसारत का क्या कहना। उन लोगों के लिए उसके अलावा कोई सरपरस्त नहीं है, और ना वो किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। और जो कुछ किताब परवरदिगार से वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की तिलावत करें कि कोई उसके कलिमात को बदलने वाला नहीं है और उसको छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। और अपने नफ्स को इन लोगों के साथ सब्र पर आमादा करो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की मर्जी के तलबगार हैं। और खबरदार तुम्हारी निगाहें इनकी तरफ से फिर न जाएं कि जिंदगानी दुनिया की जीनत के तलबगार बन जाओ, और हरगिज उसकी अतात ना करना जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से महरूम कर दिया है, और वो अपने ख्वाहिशात का पैरोकार है और उसका काम सरासर ज्यादती करना है। और कह दो कि हक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। अब जिसका जी चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफिर हो जाए। हमने यकीनन काफिरीन के लिए उस आग का इंतजाम कर दिया है जिसके पर्दे चारों तरफ से घेरे होंगे, और वो फरियाद भी करेंगे तो पिघले हुए तांबे की तरह के खौलते हुए पानी से इनकी फरियाद रसी की जाए जो चेहरों को भून डालेगा। यह बदतरीन मशरूब है और जहन्नुम बदतरीन ठिकाना है। यकीनन जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए, हम इन लोगों के अज्र को जाया नहीं करते हैं जो अच्छे अमाल अंजाम देते हैं। इनके लिए वो दायमी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और ये बारीक और दबीज रेशम के सब्ज लिबास में
ملبوس اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یہی ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے۔ اور ان کفار کے لیے ان دو انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دے دی، پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی، اور اس کے پاس پھل بھی تھے۔ تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے گزارا ہے، پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم تر ہوں، تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے، اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو، اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے، جبکہ باغ اپنی شاخوں سے پھل الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا، اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی اس سے مل جل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے۔ اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے، اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی، تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے۔ ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہیں ان کی خلقت کا، اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں۔ اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے، اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے دی ہے۔ اور مجرمین جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، اور اس وقت اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑ کرنے والا ہے۔ اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شے مانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں، مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے
یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے، اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آیات الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے اور اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ حق کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے، اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی چھوڑ گئے، اور اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان صالح سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تکان برداشت کی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مچھلی وہیں چھوڑ دی تھی، اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا تھا، اور اس نے دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ بس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر دونوں نشانے قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا۔ اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں۔ بس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خیر، جو حد گزشت ہو گئی اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا، اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ هديناه السبيل إما شاكرا